Okay, good evening friends and students, right? We will be now starting with our last lecture of biotechnology process and principles. Okay, now from the previous lectures, if you can just recollect, if you can recollect, we had definitely discussed about a gene which was called as desired gene. We had taken an example of a gene which is going to produce insulin. Okay, right. Now, we also studied that the desired gene is inserted into vector. I told you that vector is nothing but it is a vehicle. Okay. And as a result, you got a new DNA, which is now called as a recombinant DNA, or you can also use the word chimeric DNA. Okay. Now, once you get this recombinant DNA, this recombinant DNA is transferred into a suitable host cell. Now, when I use the word suitable host, I am talking about a bacterial cell, I'm talking about a plant cell, or I'm talking about an animal cell. Okay, right. Now, why this is done? Okay, this is done to get definitely a particular protein, and that protein is nothing but we call it as gene product. Okay, so our today's lecture, which is the last lecture, is definitely dedicated to how this particular gene is expressed within the cell. Okay, so now what we will be doing, we will be definitely taking the host cell, and in that host cell we will be allowing the gene to express. Now, if you just recollect molecular basis of inheritance, expression of a gene is nothing but formation of protein. Remember this very, very well. Whenever we say that the gene has expressed itself, okay, it is nothing but it is formation of protein. Okay. For example, we have inserted insulin producing gene into E. coli cell. So within E. coli cell, अगर इस जीन ने अपने आप को एक्सप्रेस किया, तो मैं बोलूंगा कि मेरे को जो डिजायर्ड प्रोटीन था वो मिल गया है. ओके, देखो यहाँ पे लिखा भी है मैंने, that is nothing but it's a protein which has been formed into the host cell. For example, we prepare insulin which is called as eumulin, and this eumulin, when it is produced by E. coli cell, we will say that a human gene is expressed within the E. coli cell, and therefore that E. coli cell is called as heterologous host. अभी ये heterologous host क्या है? सुनो, heterologous host का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके पास ये जीन पहले से मौजूद नहीं थी. For example, okay, when I say E. coli, this E. coli never had, I repeat, the E. coli cell never had this insulin producing gene. Okay, so we have termed that E. coli cell as heterologous host. Hetero का मतलब है different. Okay, तो इसके पास ये जीन थी नहीं, और उसने फिर भी वो जीन को एक्सप्रेस करने में हमारी मदद की, and therefore we use the word heterologous host. Okay, so to summarize it, you can see the diagram. This is my desired gene. Okay, desired gene is inserted into a plasmid vector. As a result, you got recombinant DNA. This recombinant DNA was inserted into E. coli cell. So now here E. coli is my heterologous host, क्योंकि उसके पास ये जीन पहले से नहीं था. फिर हमने क्या किया, इस E. coli सेल को अगार के ऊपर कल्चर किया. कल्चर का मतलब है हमने अगार के ऊपर उस E. coli सेल को मल्टीप्लाई करने लगाया, एंड एज अ रिजल्ट ऑफ दैट हमको बहुत सारी कॉलोनीज मिली. ओके, E. coli की, और ऐसी कॉलोनीज थी जिसके अंदर हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन था. ओके, फिर हमने सूटेबल कंडीशंस उसको दिए, जैसे पीएच हो गया, टेम्परेचर हो गया, राइट, और उस जीन को एक्सप्रेस करवाया, एंड एज अ रिजल्ट मुझे वो प्रोटीन मिला. फिर मैंने क्या किया, उस E. coli सेल का लाइसिस किया और उस E. coli सेल में से प्रोटीन को एक्सट्रैक्ट किया. फॉर एग्जाम्पल, इन दिस केस हमने ह्यूमन इंसुलिन को एक्सट्रैक्ट किया. इज इट ओके? वेरी क्लियर. सो डेफिनेटली ये जो पूरा मैंने यहाँ पे लिखा है, ये पूरा का पूरा एक ऐसा एक्सपेरिमेंट है
जिससे हम जीन को एक्सप्रेस करते हैं और उसका प्रोडक्ट निकालते हैं, या हम बोलेंगे कि हमने प्रोटीन को बनाया। सो डेफिनेटली इट इज प्रोटीन फॉर्मेशन, और यू कैन ऑल्सो यूज द वर्ड प्रोटीन का सिंथेसिस किया हमने हेट्रोलॉगस होस्ट के अंदर। इज इट ओके? अब सुनिए, ये जो मैंने आपको मेथड बताया, इसमें हमने जो इंसुलिन था या जो भी जीन का प्रोडक्ट था, ओके, वो एकदम लैब लेवल पे बनाए हैं। लैब का मतलब है हम लैब के अंदर ये अगार के प्लेट के ऊपर कुछ ई कोलाई के सेल्स ग्रो कर सकते हैं, और उसमें से जो इंसुलिन मिलेगा उसका अमाउंट भी एकदम कम होगा, बिकॉज यू कैन सी दैट द अगार प्लेट इज दिस मच ओनली, राइट? ओके, तो उसमें से इंसुलिन मिलने का जो है वो हार्डली 1 या 2 ml रहेगा। नाउ 1 या 2 ml इंसुलिन अगर मैं बनाऊंगा तो इट इज नॉट सफिशिएंट फॉर द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, डोंट यू थिंक? बिकॉज यू ऑल नो दैट इंडिया इज कैपिटल ऑफ डायबिटीज, यानी यहाँ पे बहुत सारे लोगों को डायबिटीज है, और अगर हमको उसको क्योर करना है तो उनको इंसुलिन के इंजेक्शंस देने पड़ते हैं। अगर मैं अगार के ऊपर इतने छोटे छोटे प्लेट्स में इंसुलिन बनाऊंगा तो ये डेफिनेटली बहुत कॉस्टली अफेयर हो जाएगा, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मैक्सिमम पॉपुलेशन है उनको ये इतना सा इंसुलिन कभी भी यूज के लिए नहीं आएगा। सो डोंट यू थिंक हमको इस इंसुलिन को मास लेवल पे या कमर्शियल लेवल पे इसका प्रोडक्शन करना है? ओके, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को अगर रोज 1000 से लेके 10,000 लीटर इंसुलिन बनाना है तो ये अगार के प्लेट्स कुछ काम के नहीं है। ओके, सो उसके लिए एक स्पेशल डिवाइस होता है और उसको हम लोग बोलते हैं बायोरिएक्टर। ओके, तो अभी हम पढ़ने वाले हैं कि कैसे आप इंसुलिन को टू दैट एक्सटेंट कोई भी प्रोटीन को मास लेवल पे या लार्ज स्केल प्रोडक्शन या इंडस्ट्रियल लेवल पे कैसे बना सकते हैं। उससे क्या होगा, आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाएगा, बिकॉज द प्रोडक्शन इज मोर। इज इट ओके? इसमें प्रोडक्शन लेस था तो कॉस्ट भी बहुत ज्यादा थी। तो वी आर नाउ गोइंग टू लर्न अबाउट हाउ इंडस्ट्रीज can definitely produce, or pharmaceutical industries to that extent can produce this insulin at large scale level. Is it okay? Right. So as I told you, if you want to have large scale production, you need to use a device which is called as bioreactor. Okay, now there are two types of bioreactors which we are going to study, okay, in brief, not in detail, in this particular year. The first is called as the simple stirred tank bioreactor, and another one is called as sparge tank bioreactor. Both are stirred type only. Stir का मतलब है हम लोग जब भी कोई भी चीजों को घुमाते हैं ऐसे, जैसे सोल्यूशन में अगर आपको शुगर मिक्स करना है पानी में तो यू हैव अ स्पून एंड देन यू कीप ऑन स्टरिंग इट। ओके, तो स्टर का मतलब है कंटिन्यूअसली एजिटेट करना या मिक्स करना। अभी अगर आप देखेंगे तो ये जो पहला डायग्राम मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया है वो है सिंपल स्टर्ड टैंक बायोरिएक्टर, और ये जो ब्लू वाला है उसको हमने नाम दिया है स्पार्ज्ड टैंक बायोरिएक्टर। हम पहले इसका कंस्ट्रक्शन देखते हैं। अगर हम इस बायोरिएक्टर को देखेंगे तो ये एक बहुत बड़ी वेसल होती है जिसमें आप 100 से लेके 1000 या 10,000 लीटर तक का आपका प्रोडक्ट बना सकते हैं। You can prepare proteins, you can prepare enzymes, you can prepare hormones, you can prepare ethyl alcohol, okay, you can prepare antibiotics also, right? अब सुनो, अभी अगर आप सिंपल स्टर टैंक फर्मेंटर को देखेंगे तो इसका जो बेस है वो कर्व है, जबकि स्पार्ज टैंक में अगर आप देखेंगे तो इसका बेस फ्लैट है। अगर कर्व बेस होगा तो इजी मिक्सिंग होता है चीजों की। अगर हम देखेंगे तो हमारे घर में जो यूटेंसिल्स है, बर्तन, उनका भी जो बेस होता है जिसमें हम लोग नॉर्मली करीज बनाते हैं वो थोड़ा सा कर्व होता है। कर्व अगर रहेगा तो उससे अच्छी तरह से चीजें मिक्स करने में मदद होती है एज कंपेयर टू फ्लैट। देयरफॉर द बेस ऑफ द बायोरिएक्टर इज केप्ट कर्व। दूसरा, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा सा पाइप है जिसमें से आप स्टराइल एयर इनलेट कर सकते हैं, ठीक है?
उसके बाद थोड़ा ऊपर की तरफ आते हैं, यहाँ पे और एक इनलेट है जिसको हम लोग बोलते हैं पीएच या एसिड बेस कंट्रोलर। यहां से आप एसिड या बेस इस पर्टिकुलर बायोरिएक्टर के अंदर डाल सकते हैं, क्योंकि अभी आपको याद रखना है कि बहुत सारे जो बैक्टीरियल सेल्स हैं जो इंसुलिन बनाने वाले या और कोई प्रोडक्ट बनाने वाले हैं, वो पर्टिकुलर पीएच पे ही काम करते हैं। द पीएच में आइदर बी एसिडिक और इट मे बी बेसिक, सो यू हैव टू मेंटेन अ प्रॉपर पीएच, और उसके लिए ये पर्टिकुलर इनलेट काम में आएगा। ओके दूसरा, इसमें ये जो मैंने कर्व्ड एरिया बताया है, ये उसका लिड है, लिड या ढक्कन हम लोग बोलेंगे, ठीक है। तो ये ढक्कन है और उसके ऊपर ये मोटर है। उसके बाद यहाँ पे और एक पाइप बताया है, इस पाइप के जरिए हम लोग स्टीम पास करेंगे। अभी स्टीम जो है वो डेफिनेटली अराउंड 100 डिग्री सेल्सियस होता है, राइट। अभी ये अगर मैं अंदर डालूंगा तो ये पूरा वेसल जो है वो स्टेरलाइज हो जाएगा। इसके लिए सबसे पहले हम इस बायोरिएक्टर के अंदर स्टीम डालते हैं, तो स्टीम से ये पूरा बायोरिएक्टर स्टेरलाइज होता है। अभी सब लोगों को मालूम है स्टेरलाइजेशन का मतलब है हम जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इसके अंदर है उसको पहले मार डालेंगे। इज दिस क्लियर? फिर उसके बाद स्टेराइल एयर पास करेंगे ताकि और भी वो क्लीन हो जाए, राइट। उसके बाद हम लोग इसके अंदर फेड डालते हैं। नाउ फेड इज नथिंग बट a solution containing our E. coli and that to those E. coli cells जिसके अंदर हमारी desired gene है, ओके तो ये हम लोग इसके अंदर डाल देंगे। उसके बाद अगर आप देखेंगे तो इसके सेंटर में एक ब्लेड है जिसको हम लोग बोलते हैं इम्पेलर। इम्पेलर का मतलब है जो कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा या एजिटेट होते रहेगा। क्लियर? सुपर। अभी सुनो, उसके बाद यहाँ पे एक छोटा सा और आउटलेट है जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग पोर्ट। सैम्पलिंग पोर्ट का मतलब है जब भी आप इसके अंदर फेड या जो बैक्टीरिया है उसको डालेंगे तो वो बैक्टीरिया का नंबर बढ़ते जाएगा और एक समय ऐसे आएगा कि वो बैक्टीरिया आपका इंसुलिन बना रहा है। अभी वो इंसुलिन अंदर बना है या नहीं बना है ये जानने के लिए एक छोटा सा आउटलेट है जिसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग पोर्ट। उसमें से हम थोड़ा सा सैंपल निकालते हैं और उसका टेस्टिंग करते हैं कि उसमें इंसुलिन है या नहीं है, या जो भी आपको प्रोडक्ट चाहिए वो है या नहीं है। इज इट ओके? क्लियर? राइट। तो इसको हम लोग बोलते हैं सैम्पलिंग पोर्ट, और ये सिंपल स्टर टैंक फर्मेंटर है, राइट, जो मैक्सिमम इस्तेमाल होता है इन बायोटेक्नोलॉजी या इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या लार्ज स्केल प्रोडक्शन के लिए ये इस्तेमाल होता है। अभी दूसरा जो है वो स्पार्ज टैंक फर्मेंटर है। स्पार्ज का बेसिकली मतलब है मॉइस्ट एयर। अभी अगर आप देखेंगे तो इसमें भी ये एक एजिटेटर सिस्टम है। एजिटेटर सिस्टम का मतलब है जो कंटिन्यूअसली मिक्स करते रहेगा चीजों को, राइट। अब सुनो, अभी इसमें जो सरफेस एरिया है ये हम बढ़ा सकते हैं बाय स्प्रेइंग मॉइस्ट एयर ऑन द कल्चर। तो ये जो ब्लू ब्लू आपको दिखता है ये कुछ नहीं है बट इट इज कल्चर ब्रॉड, ठीक है, राइट। अभी आप लोग बोलेंगे कि ये मॉइस्ट एयर डालने का जरूरत क्या है, तो सुनो, हमारे जो बैक्टीरिया है ये एरोबिक बैक्टीरिया है और उसको अगर डिवाइड और रीडिवाइड करना है तो इट रिक्वायर्स एनर्जी और एटीपी, and for that they have to perform aerobic respiration. So moist air will supply oxygen to all the bacteria which are there in the culture. Now here that oxygen is again supplied through this particular inlet which is nothing but, right, it is an inlet for sterile air. अभी और एक बात, जब भी हम इसके अंदर कल्चर डालते हैं, कल्चर का मतलब है इट इज नथिंग बट इट इज अ सॉल्यूशन कंटेनिंग अवर ट्रांसफॉर्म्ड बैक्टीरिया या ऐसे बैक्टीरिया जिनके अंदर हमारा इंसुलिन प्रोड्यूसिंग जीन है। इज इट ओके? राइट। तो जब भी हम उस कल्चर को डालते हैं तो वो कल्चर कंटिन्यूअसली एजिटेट होता है विद द हेल्प ऑफ फ्लैट ब्लेड इम्पेलर। ये कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा। अभी जब भी वो कंटिन्यूअसली घूमेगा, राइट, तो उसके वजह से फ्रॉथ बनता है या फोम बनता है। ओके अभी आप अगर देखेंगे तो अगर आप लेमन जूस घर पे बनाएंगे तो और अगर आप कंटिन्यूअसली स्टर करेंगे तो कुछ देर के बाद आपको फोम
राइट ओके, या झाग जो है वो ऊपर की तरफ आते हुए दिखेगा। ये झाग को तोड़ने के लिए यहाँ पे और एक पार्ट है, इसको हम लोग बोलते हैं फोम ब्रेकर, यानी जो झाग आएगा उसको तोड़ने के लिए वी विल बी यूजिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट विच इज कॉल्ड एज फोम ब्रेकर। गेटिंग इट राइट। और कंटिन्यूअसली एयर जो है वो अंदर हम लोग डालते रहेंगे ताकि जो यहाँ पे बैक्टीरिया है उनको ऑक्सीजन मिलता रहेगा। स्टरिंग के वजह से वो ऑक्सीजन इक्वली सब जगह के बैक्टीरिया को मिलेगा। ओके और जैसे मैंने बोला, आपका प्रोडक्ट तैयार है या नहीं है ये जानने के लिए यू कैन यूज दिस सैंपलिंग पोर्ट। सो दिस इज व्हाट द बायोरिएक्टर इज एंड वी कैन यूज इट फॉर गेटिंग आवर डिजायर्ड प्रोडक्ट। ओके अब सुनिए, अभी ये जो बायोरिएक्टर्स हैं दोनों भी, तेरे स्पार्क टैंक या स्टर्ड टैंक, ये दो स्टेजेस में काम करते हैं। नाउ अंडरस्टैंड दिस, the first step or the first stage is called as upstream processing. Now when I use the word upstream processing ये एक ऐसा स्टेज है जिसमें हम जो कल्चर है वो उसको स्टर्ड टैंक फर्मेंटर के अंदर डालते हैं। ओके उसमें हम देखेंगे कि इनफ अमाउंट ऑफ बैक्टीरिया है, इनफ अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन सप्लाई है, प्रॉपर पीएच है, और सबसे इंपॉर्टेंट उनको जो ग्रोथ करने के लिए न्यूट्रिशन चाहिए वो भी उसके अंदर है या नहीं है। तो व्हेन यू चेक ऑल दिस वी कॉल इट एज अपस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ये सब डालने के बाद ये ढक्कन बंद कर दिया जाता है, राइट, और फिर हम उस स्विच को दबाते हैं तो ये कंटिन्यूअसली फिर एजिटेट होते रहेगा। रिमेंबर एजिटेट का मतलब है कंटिन्यूअस मिक्सिंग, जिसके वजह से आपके प्रोडक्ट बनते जाएंगे। ओके अभी जो दूसरा पार्ट है हमारे लार्ज स्केल प्रोडक्शन का उसको बोलते हैं डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब सुनना, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग ये जो है ये एक ऐसा स्टेप है या स्टेज है जो एसोसिएटेड है विद कलेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट एंड उसका फ्यूचर पैकेजिंग। अब सुनो, फॉर एग्जांपल हमने सिंपल स्टर्ड टैंक फर्मेंटर इस्तेमाल करके यूम्यूलिन बनाया। व्हेन आई यूज द वर्ड यूम्यूलिन आई एम टॉकिंग अबाउट ह्यूमन इंसुलिन। ओके वो हमने बनाया। तो सबसे पहले हमने उसका कलेक्शन किया, किसका? यूम्यूलिन का। तो कलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ओके फिर हमने क्या किया, हमने उस पर्टिकुलर यूम्यूलिन को प्यूरिफाई किया, क्योंकि उसके अंदर इकोलाई का सेल्स का टुकड़ा होगा, तो वी विल बी डेफिनेटली प्यूरिफाइंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। राइट उसके बाद अभी अंडरस्टैंड दिस पर्टिकुलर स्टेप वेरी वेल। जो भी यूम्यूलिन हमने बनाया है क्या वो इंसानों के लिए सेफ है या नहीं है, उसका टेस्टिंग किया जाता है। सो द थर्ड स्टेप इज नथिंग बट टेस्टिंग। टेस्टिंग करने के बाद अगर वो अनसेफ है तो ये जो चीज है इसको डिस्कार्ड किया जाता है। अगर वो सेफ है तो हम उसको छोटे छोटे वायल्स में भरते हैं। वायल्स का मतलब है छोटी छोटी कांच की बोतल। ओके राइट और उस पर्टिकुलर वायल्स के अंदर हम लोग प्रिजर्वेटिव डालते हैं। ये प्रिजर्वेटिव्स डेफिनेटली हमारे जो केमिकल्स हैं उसको लंबे अरसे तक खराब होने देते नहीं है, और फिर ये वायल्स को हम मार्केट में बेचते हैं या फार्मास्यूटिकल कंपनी स्टार्ट पर्टिकुलर सेलिंग दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट। ओके वेरी क्लियर। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टेस्टिंग है, जिसके वजह से हमारी जो क्वालिटी है प्रोडक्ट की वो भी जांची जाती है। जैसे मैंने बताया स्पेशली अगर ये वैक्सीन हुआ, राइट, वैक्सीन आई होप यू नो, राइट, उसका टेस्टिंग बहुत जरूरी है कि वो सेफ है या नहीं है। उसके बाद ये जो इंसुलिन है ये हम लोग सीधा बॉडी में इंजेक्ट करते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं आईवी, इंट्रावेनस।
तो इंट्रावेनस जो भी चीजें हैं उसका सेफ्टी का टेस्टिंग होना, उसका क्वालिटी कंट्रोल बराबर से ध्यान में रखना, ये सब किया जाता है ड्यूरिंग डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। ओके, सो डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग में सबसे पहले हम प्रोडक्ट को कलेक्ट करेंगे, हम उसको प्यूरिफाई करेंगे, हम उसका क्वालिटी टेस्टिंग करेंगे, फिर हम उसको पैकेजिंग करेंगे वायल्स में, उसके साथ साथ प्रॉपर प्रिजर्वेटिव्स भरेंगे, एंड देन वी विल डेफिनेटली मार्केट इट। ओके, सो दिस इज हाउ a particular gene product can be obtained and it can be used for betterment of humans. Okay, right. With this, we will end the chapter biotechnology process and principles. Okay, so the chapter is over. I request you to please go through your NCERT book line by line, word to word, and whenever there is doubt solving session, please be ready with the doubts. Okay, bye kids, take care.